لاہور ہائی کورٹ نے ماحولیاتی آلودگی کے متعلق کیس کی سماعت کی۔ ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے پر عدالت برہم دکھائی دی۔ اسموک تدارک نہ کرنے پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد طلب کر لیے گئے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ چیف سیکرٹری اور بیوروکریسی سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم کا کہنا تھا کہ واٹر کمیشن کی رپورٹس اور ویڈیو سامنے ہیں، مسئلے پر قابو نہ پایا گیا تو نسلوں کو کیا جواب دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہونے پر عدالت برہم دکھائی دی۔ اسموک تدارک نہ کرنے پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو طلب کر لیا۔ چیف سیکرٹری اور بیوروکریسی سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ فیصل آباد میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے، مزید 9 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ رواں سال ضلع بھر میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 329 ہو گئی۔ 221 مریض الائڈ اسپتال میں رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے، مزید 9 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ رواں سال ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 329 ہو گئی۔ 221 مریض الائڈ اسپتال، 108 ڈسٹرکٹ اسپتال میں رپورٹ ہوئے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ چینی کا ایکس مل ریٹ 140 سے 100 روپے پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں قیمت اب بھی زیادہ ہے۔ چینی کی بڑھتی قیمت کو کنٹرول کرتے ہوئے حکومت نے ایکس مل ریٹ 40 روپے کم کیا۔ اب 100 روپے ایکس مل ریٹ مقرر ہے، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں چینی کا ریٹ 105 سے 110 روپے تک ہونا چاہیے۔ شہری کہتے ہیں کہیں بھی چینی 110 روپے نہیں مل رہی۔ چینی کوئی سستی نہیں کی جی، چینی 120 روپے کلو مل رہی ہے، کوئی دکاندار 130 روپے کلو دے رہا ہے۔ ہر دکاندار کا آپ کو اپنا ریٹ ہے، یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ وہی وچ پاؤڈر والی رلا کے 90 روپے والی دے رہے ہیں دکاناں والے، کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی چھاپا نہیں مار رہا، کدی حکومت ہے۔ حکومت نے چینی کی قیمت کم کرنے کا اعلان تو کیا، مگر چیک اینڈ بیلنس کہیں بھی نہیں ہے۔ شہری کہتے ہیں دکاندار من مرضی کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ حکومت کا چینی کی قیمت کم کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، چینی تو مہنگے داموں ہی مل رہی ہے۔ باوے چاک تو اگے 160 روپے ملن دئی آ، 150 روپے 350 روپے کا گھیو دا پیکٹ ملن دیا۔ چینی کوئی سستی نہیں کی گئی، یہ کچھ کرنا چاہیے۔ صبح دے آن کے ادھر سے کھلوتے ہیں، دیہڑی لگتی کوئی نہیں ہے۔ چینی کی قیمت کم تو کر دی گئی، مگر دکاندار من مرضی کی قیمت وصول کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ صنعت کاروں کو مشکلات نے آن گھیرا۔ پہلے گیس مہنگی ہوئی، پھر کوئلے کے دام بڑھ گئے، مجبوراً فیکٹریوں میں تکا جلانے لگے تو وہ بھی مہنگا ہو گیا۔ انڈسٹری کے لیے گیس اور کوئلہ کے دام بڑھے تو صنعت کار مجبوراً بطور ایندھن تکا جلانے لگے، جس کے بعد تکے کی قیمتوں میں فی من 50 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ تکے کی ڈیمانڈ کے ساتھ اب اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ سینٹرل چیئرمین اپتپما احتشام جاوید کہتے ہیں فیکٹریاں چلائے رکھنا اب ہمارے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ انڈسٹری جو اسی حکومت نے، آپ نے دیکھا پچھلے سال کتنے اچھے طریقے سے رن کیا، اس انڈسٹری نے پرفارم کیا۔ آج بھی آپ کی ایکسپورٹس ٹھیک ہیں، لیکن جو آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہے، جو آپ کی انڈسٹری، جو آپ کی ایس ایم ایز بیس انڈسٹری ہے، جو بیک بون ہے آپ کی کسی بھی اکانومی کی، آپ اٹلی کا فارمولا اٹھا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش کا اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں اور دیکھ لیں، اس وقت آپ کی اکانومی کو لے کے جانے والی جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اس کی کاسٹ بہت بڑھ چکی ہے۔ لوکل انڈسٹری کو چلانا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ احتشام جاوید نے مزید کہا ہر گزرتے دن کے ساتھ انڈسٹری کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ حالات اتنے برے ہیں کہ کئی فیکٹری مالکان دیوالیہ ہونے لگے ہیں۔ ایسے میں واحد سستا ایندھن تکا بھی انتہائی مہنگا کر دیا گیا۔ آپ کے ڈائز کیمیکل کی کاسٹ بڑھ گئی، امپورٹ کے اوپر کے اس کے ڈالرز کی ریٹ کی وجہ سے کوئلہ آپ کا اتنا مہنگا ہو گیا۔ جو بطور ایندھن آپ فیول یوز کرتے تھے، جس میں کارن کاپ تھا، جس کے اندر بگھاس تھی، جس میں دوسری چیزیں تھیں، ان کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ ان کے ریٹس آسمان کی طرف پہنچ گئے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ لگانا اس وقت اتنا زیادہ انڈسٹری چلانا مشکل ہو چکا ہے کہ ہم کس طریقے سے سروائیو کریں گے۔ دوسری طرف جو آپ کی مارکیٹ ہے وہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، کپڑے کے اوپر جو کاسٹ ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہی۔ احتشام جاوید نے کہا پیداواری لاگت بڑھتی جا رہی ہے اور مارکیٹ میں کپڑے کی مانگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ فیصل آباد ماسٹر پلان کا عدالت عظمیٰ میں طلبی کا معاملہ۔ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ماسٹر پلان کا حتمی ڈرافٹ طلب کر لیا۔ عدالت میں ماسٹر پلان کی طلبی کے بعد ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ماسٹر پلان کا حتمی ڈرافٹ طلب کر لیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ عوامی شکایات اور تجاویز کی روشنی میں کیا بہتری کی گئی ہے، تفصیلات دی جائیں۔ اس کے علاوہ ماسٹر پلان کی تکمیل بارے بھی آگاہ کیا جائے۔ ڈی جی ایف ڈی اے ڈاکٹر فیصل عظیم کا کہنا ہے کہ تجاویز کی روشنی میں ماسٹر پلان مکمل کیا جائے گا۔ ماسٹر پلان ابھی حتمی شکل سے تو کافی دور ہے،
फैसलाबाद का मास्टर प्लान हतमी शक्ल से काफ़ी दूर है। अभी तो कंसल्टेशन इसकी फ़ेज़ जो है वो चल रही है। कंसल्टेशन फेज़ में हम लोगों ने जो अभी तक उस्मानीज़ ने काम किया हुआ था, 2017 में काम शुरू किया था उन्होंने। जो भी तक उन्होंने काम किया हुआ था और पहले डिफरेंट सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जो उनको आरा तजावीज़ आती थी, और उसके बाद जो उनके पास अपनी कोई नॉलेज है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके पास एक अर्बन प्लानिंग का विजन है। तो और अवामी आरा जो उन्होंने ली डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, सेमिनार्स में, उसके बाद उन्होंने एक स्केच बनाया है। ये स्केच जो है इसको हमने पब्लिक कर दिया कि जी अभी तक जो है उस्मानीज़ जो हैं उन लोगों ने दे हैव मेड अप दिस माइंड कि जी इस तरह से ये होना चाहिए, उसके ये खदोखाल होने चाहिए। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फैसल अजीम कहते हैं मास्टर प्लान की टाइमलाइन के लिए उस्मानी एंड कंपनी को खत लिखा हुआ है, जबकि मास्टर प्लान को अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बनाने के लिए कोशां हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और 25 करोड़ रुपए से नए सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर का टेंडर देने के लिए नीलामी का अमल मुकम्मल। कॉम्प्लेक्स एसपीसीआईए दफ्तर की जगह तामीर होगा। नए सीपीओ कम्प्लेक्स की तामीर का टेंडर देने के लिए नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया। नया सीपीओ कम्प्लेक्स एसपीसीआईए दफ्तर की जगह पर तामीर होगा। बिल्डिंग बेसमेंट समेत ट्रिपल स्टोरी पर मुश्तमिल होगी। पंजाब हुकूमत ने हालिया बजट में सीपीओ कम्प्लेक्स के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मौसूल हो चुकी। ठेका हैंड ओवर होते ही कम्प्लेक्स की तामीर का आगाज किया जाएगा। एसपीसीआईए का दफ्तर थाना पीपल्स कॉलोनी के ऊपर फ्लोर में मुंतकिल कर दिया गया। सीपीओ कम्प्लेक्स की तामीर 3 साल में मुकम्मल होगी। सीपीओ कम्प्लेक्स में एसएसपी ऑपरेशन समेत दीगर अफसरान के दफातर भी मुंतकिल किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। टीएचक्यू अस्पताल शोरकोट इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। डिजिटल एक्सरे मशीन 4 साल से खराब। इंतजामिया मशीन ठीक करवाने में नाकाम। मरीज प्राइवेट लेबॉर्टरियों से महंगे दामों एक्सरे करवाने पर मजबूर हो गए। आपको बता रहे हैं कि टीएचक्यू अस्पताल शोरकोट इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। डिजिटल एक्सरे मशीन 4 साल से खराब है। मैं इधर अपना मरीज़ लेके आया हूँ तो मुझे इधर आके पता चला कि यहाँ की जो डिजिटल मशीन है ना वो ख़राब है, क्योंकि हमारे बाद जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इधर वो गरीब आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इधर मुनासिब फ़ीस है। तो इधर आके हम मरीज़ ले आए तो पता चला कि मशीन ख़राब है। हमारा जो है ना आला अफसरान से भी ये अपील है कि इसको मशीन को ठीक करवाया जाए, और इधर के जो एमएस साहब हैं उनसे भी अपील है कि ये जल्द से जल्द मशीन ठीक करवाए, क्योंकि गरीब आदमी इससे फ़ायदा ले सके। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद का रेल बाजार और मंदिर बाजार का दौरा। तजावुज़ात के खात्मे के लिए दुकानदारों को कल तक वार्निंग दे दी। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमला के हमरा मंदिर रोड और रेल बाजार का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों को तजावुज़ात का सबब बनने वाले सामान को फौरी हटाने का हुक्म दिया और कहा दुकानदार अपना सामान दुकान की हदूद में ही रखें। बाजारों की कुशादगी के लिए म्यूनिसिपल कमेटी रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन करेगी। मंदिर रोड का विजिट किया और बाज़ार में जो कुछ तजावुज़ात थी उनके हवाले से मैंने उनको वार्निंग्स जारी की हैं दुकानदारों को, ठेले वालों के वो जो है ना बाज़ार में मौजूद नहीं रहेंगे ताकि आवाम के गुजरने के लिए कन्वीनियंस हो। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कल से एंटी तजावुज़ात स्क्वाड तजावुज़ात का बायस बनने वाला सामान कब्जा में लेगी। सफाई पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। मेरा मेन फोकस यही है कि शहर के अंदर जो है वो सफाई होनी चाहिए और कूड़ा करकट जो है कहीं पे भी बाज़ारों के अंदर गलियों के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। मैं टीएमए वालों के साथ भी डेली जो है इसके ऊपर मीटिंग्स करता हूं, उनको डायरेक्शंस जारी करता हूं। मोहम्मद आसिम जावेद ने अमला को हदायत की कि बगैर किसी तफरीक के तजावुज़ात का खात्मा किया जाए, किसी को कोई रायत ना दी जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किस हद तक मौसर काम कर रही है, कहीं कूड़ा करकट तो नहीं। जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद के दौरे। हर सफाई की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, सफाई सुथराई और इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने डी टाइप और समनाबाद के इलाके भी चेक किए। सफाई के हवाले से पार्क्स का दौरा किया। अली शहजाद का कहना है कि दौरे का मकसद यह है कि चेक किया जाए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किस हद तक काम कर रही है। सेशन जजेस झंग समेत पंजाब भर के स्कूलों में नाजरा कुरान की तालीम की मॉनिटरिंग करेंगे। नाजरा कुरान की स्कूलों में तालीम को यकीनी बनाने के लिए सेशन जजेस दौरे भी करेंगे। झंग समेत पंजाब भर के स्कूलों में नाजरा कुरान की तालीम की मॉनिटरिंग सेशन जजेस के सुपुर्द कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अहम मरासला जारी कर दिया। 15 नवंबर से एजुकेशन अथॉरिटीज के सीओज मुतल्लिका जिले के सेशन जज को रिपोर्ट भिजवाएंगे, जबकि सेशन जजेस नाजरा कुरान की स्कूलों में तालीम को यकीनी बनाएंगे। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया की लापरवाही या वजह कुछ और। बच्चों की गुमशुदगी की इतला के लिए बनाई गई ज़ैनब अलर्ट ऐप फैसलाबाद में गैर फाल।
10% फोर्स ने भी ऐप इंस्टॉल ना की। बच्चों की गुमशुदगी के लिए बनाई गई ज़ैनब अलर्ट ऐप फैसलाबाद में गैर फाल हो चुकी है। फैसलाबाद पुलिस के सिर्फ 10% एहलकारों ने ज़ैनब अलर्ट ऐप इंस्टॉल की है। ज़ैनब अलर्ट ऐप पर बच्चों की गुमशुदगी की इतला पर फैसलाबाद में 1 साल में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। ऐप मुल्क भर की पुलिस को इंस्टॉल करने का हुक्म दिया गया था। IG पंजाब ने सूबा भर से ज़ैनब अलर्ट पर होने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ैनब अलर्ट पर फराहम किए जाने वाले दीगर 10 फंक्शन भी फाल न हो सके। खवातीन की हरासगी रोकने का फंक्शन भी काम न आ सका। खेल के मैदान से खबर है, T20 वर्ल्ड कप से दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बता रहे हैं, दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं खेल के मैदान से, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल का दूसरा मैच खेल रहा था। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप का बता रहे हैं आपको, T20 वर्ल्ड कप दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को शिकस्त। फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी सिफर, पोल खुल गया। रवां साल 1847 केसों में मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए गए। पुलिस एक को भी अदालत में पेश ना कर सकी। मजिस्ट्रेट्स और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की अदालतों में 1847 केसेस में मुल्जिमान को अदालती इश्तिहारी करार दिया गया। चौरी नासिर हबीब एडवोकेट हाई कोर्ट। यहाँ पे 2-3 फैक्टर हैं। ये थाना जब 87-88 की कार्रवाई करता है तो उसके बाद वो जो मुल्जिमान होते हैं, जो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाते हैं, कुछ का तो सियासी असर रसूख होता है, वो ऐसे ही आते हैं थानों में, ऐसे ही निकल जाते हैं वापस विदाउट एनी बेल फैसिलिटी। और कुछ का तलक पुलिस पार्टी से दोस्ती याराने होते हैं जो आईओ के पास बैठ के चाय पी के जाते हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि कुछ स्केप कर जाते हैं, वो मुल्क से बाहर फरार हो जाते हैं। अब इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी ये जिम्मेदारी है, अगर इन्होंने 87-88 की कार्रवाई की है तो उनको ये एक्ट अपॉन करें, उनको पकड़ें। और दूसरा ये कि अदालतों में जो 512 की कार्रवाई होती है, जो अदालती मफरूर होते हैं, अब जो लिस्ट बता रहे हैं 1900 समथिंग है, तो ये इन पे एक्ट अपॉन करवाना भी अब जज ने तो नहीं जाके बंदे पकड़ने, ये पकड़ने तो एडमिनिस्ट्रेशन ने है, ये इंतजामिया ने है। तो ये हमारे आरपीओ सीपीओ को इनका जो अपना अमला है जो थानों में, इन पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हर बंदा जो है अपने ही हिसाब से काम कर रहा है और कानून का कुछ भी पास नहीं कर। रेस्क्यू 1122 शहरियों को इब्तदाई तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। जंग समेत पंजाब भर में खुसूसी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई। लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए शहरी तक पहुंचने में आसानी होगी। जंग समेत पंजाब भर में रेस्क्यू 1122 ने शहरियों को फौरी इब्तदाई तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। एप्लीकेशन के जरिए शहरी अपने मोबाइल से इमरजेंसी सूरत हाल में रिपोर्ट कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने एप्लीकेशन को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मददगार करार दिया। रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद अमीन का कहना था, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मुतासरा शहरी की लोकेशन बासानी ट्रेस हो सकेगी, जबकि गलत मालूमात फराहम करने वालों की शनाख्त भी मुमकिन हो सकेगी। ये उसी तरह से बिल्कुल काम कर रही है जैसे उबर और करीम का तरीक़ाकार है। यानी आप इस ऐप के ज़रिए अगर रेस्क्यू 1122 को कॉल करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो रेस्क्यू कंट्रोल रूम में चली जाएगी और आपको भी इसी तरह से पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस कितनी दूर है या वो कहाँ पे आ रही है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक इमरजेंसी हेल्पलाइन पर जाली कॉल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, Choti 41 चंग। महंगाई ही महंगाई है। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून मुंह जोर महंगाई के खिलाफ तिलमिला उठी। हुकूमत के खिलाफ पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर तहरीक चलाने के लिए कोशिश। लीगी रहनुमा इसरार अहमद मुन्ने खान कहते हैं नवंबर में ही लॉन्ग मार्च होगा। पीटीआई हुकूमत अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के सदर राना अब्दुल सत्तार और नायब सदर
मलिक इमरान खलील का दौरा फैसलाबाद। वेस्ट पंजाब रीजन के दफ्तर में दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मौजूदा हुकूमत के इकदामात को काबिल सताइश करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर पीटीआई वेस्ट पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना जावेद अशरफ, पीटीआई ट्रेडर्स विंग वेस्ट पंजाब के सदर अब्दुल्ला दुमर, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद हयात कमोका, कलीमुल्ला कमोका समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। आतिफ मुनीर की मशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद और खुसरो बख्तियार से मुलाकात। सदर चैम्बर ने एसएमई सेक्टर पॉलिसी पर अपने मुतालबात पेश किए। सदर ईवान सनअत व तिजारत फैसलाबाद आतिफ मुनीर ने मशीर वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद से छोटे और दरमियानी तबके के कारोबार के लिए कारोबार की हद को 80 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने का मुतालबा किया। कहते हैं डॉलर में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद छोटे कारोबारी तबके को मसाइल का सामना है। ऐसे में कारोबार की हद भी बढ़नी चाहिए। उन्होंने हुकूमत से एसएमई पॉलिसी को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। बीमारियों से भरपूर पौधे फलों के मयार को मुतासिर करने लगे। गैर मियारी फलों से मुल्की बरामदात मुतासिर होने और अरबों रुपए नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। फलों की पैदावार मुतासिर होने के बाद महकमा ज़राअत ने आगाही मुहिम भी शुरू कर दी, जिसमें काश्तकारों को बताया जा रहा है कि पैदावार बढ़ाने के लिए बीमारी से पाक पौधे लगाए जाएं ताकि अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। महकमा ज़राअत की जानिब से इजलास भी मुनाकिद किया गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक, चेयरमैन एग्रीकल्चर टास्क फोर्स मियां इम्तियाज, डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत आसिफ अजीज ने भी शिरकत की। ज़राई माहिरीन ने बताया टोबा समेत डिवीजन भर में फलों की पैदावार मुतासिर हुई है, जिससे बरामदात में कमी हुई और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। शुगर क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की आगाही रैली। प्रोफेसर हिना आयशा, प्रोफेसर आमिर शौकत समेत डॉक्टर्स और तलबा ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से शुगर से मुतालिक शहरियों में आगाही के लिए रैली निकाली गई। प्रोफेसर हिना आयशा, प्रोफेसर आमिर शौकत समेत डॉक्टरों और मेडिकल के तलबा ने शिरकत की। प्रोफेसर हिना आयशा का कहना था कि शुगर के मरीजों का तनासब 12% है। वर्जिश न करना बीमारी के बढ़ने की वजह है। पाकिस्तान है वो दुनिया में उन 10 मुल्कों में से है जिसमें डायबिटीज़ यानी ज़ियाबतीज़ का इंसिडेंस प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 12% लोग जो है वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और जिसमें कि मेल्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। और पंजाब का जो प्रोविंस है उसमें 12% से भी ज़्यादा इसकी शरह है। तो आजकल जो हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के लिए वॉक का इनकाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने किया, उसका मकसद आगाही पैदा करना है कि हम अगर अपना लाइफस्टाइल में तब्दीली करें तो हम इस शुगर के मर्ज से बहुत हद तक बच सकते हैं। प्रोफेसर आमिर शौकत का कहना था कि शुगर की कोई अलामत नहीं होती, मगर एक साल में 2 से 3 बार अपना चेकअप करवाएं। मेडिसिन और इंसुलिन के जरिए शुगर के मरीजों का इलाज हो रहा है। दिल की बीमारियां, गुर्दों का मुतासर होना समेत दीगर बीमारियां शुगर की वजह से होती हैं। फायदा ये वाला है कि आप इस मर्ज को गोलियों के साथ और अपनी एहतियात के साथ बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपको मालूम है कि इस मर्ज में सिर्फ ये नहीं है कि शुगर तेज़ होती है, उसके अलावा इसकी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसमें बिनाई का जाना, पाँव का इन्फेक्शन होना, पाँव का काटना, टांग का काटना, दिल का अटैक होना, मोटापा होना, बेशुमार असरात शामिल हैं। अगर किसी तरीके से हम लोगों को यही बता दें कि इब्तदाई स्टेज के ऊपर इसको तशखीस कर लिया जाए और उस मौके के ऊपर एहतियाती तदाबीर से इसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो ये सारा का सारा जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और अस्पतालों पे बोझ है शुगर के मर्ज की बिना पे, इसको बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। रैली में शरीक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान का कहना था कि मोटापा बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया भर में पाकिस्तान 10वें से 4थे नंबर पर आ चुका है। फास्ट फूड का इस्तेमाल और मुतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल ना करने से शुगर की बीमारी बढ़ रही है। चीज़ ये है कि मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ जिसमें गुड़, शक्कर, चीनी, शहद, तो उसको इस्तेमाल ना करें। और उसके साथ डेली 30 मिनट तक तेज़ कदमों के साथ वॉक करें और इसके साथ मुतवाजन अद्वियात का इस्तेमाल करें। किसी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आप खुराक, वर्जिश और अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ शुगर से बच सकते हैं बल्कि इसकी बहुत सी पेचीदगियों से भी बचा जा सकता है। आगाही रैली मेडिकल यूनिवर्सिटी से अलाइड अस्पताल तक निकाली गई। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। पैराडाइम स्कूल फैसलाबाद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। प्रिंसिपल मिसेज अमरीन नकवी, तैयबा इरम, आयशा खान, रुबीना कैसर, सायरा कोमल और दीगर भी शरीक हुई।
پیپراڈائن اسکول فیصل آباد میں منعقدہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اساتذہ اور طلبہ نے خوبصورت نعتیہ کلام پیش کیے. حاضرین نے اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا. محفل میلاد میں آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھا گیا، جبکہ طالبات نے قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھا. طلبہ اور اساتذہ نے نعتیہ کلام کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اظہار خیال کیا. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پرنسپل مسز امبرین نقوی، طیبہ ارم اور عائشہ خان نے شرکت کی، جبکہ روبینہ کیسر، سائرہ کومل، امبرین سہیل، عالیہ اور دیگر اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے حاضری دی. کیمرامین علی حسن کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. سٹی اسکول سول لائن برانچ میں اسٹوڈنٹس کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا. دا سٹی اسکول سول لائن برانچ میں ڈسپلن کے قیام کے لیے طلباء کا انتخاب کر لیا گیا. ڈسپلن ونگ میں منتخب طلباء سے حلف لینے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ہیڈ بوائے، ہیڈ گرلز سمیت ڈسپلن ٹیم کا حصہ بننے والے طلباء کا سٹی اسکول مسٹر ڈیوڈ، پرنسپل دا سٹی اسکول چناف کیمپس اسما عامر نے خصوصی شرکت کی اور طلباء کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو لازمی قرار دیا. پرنسپل دا سٹی اسکول سول لائن برانچ عائشہ انور کا کہنا تھا کہ بچوں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض بھی ہیں جس پر انہیں پورا اترنا ہوگا. سٹی اسکول میں نہ صرف تعلیم بلکہ ان کی تربیت پہ بھی پورا دھیان دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز بچوں میں نہ صرف اعتماد کو بوسٹ اپ کرتی ہیں بلکہ ان کو اگلی زندگی میں جو انہوں نے بہترین شہری کا ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں 4 روزہ آل پاکستان ایجوکیشنل اولمپیڈ کا انعقاد کیا گیا تھا. ملک بھر کے 30 سے زائد تعلیمی اداروں کے طلباء نے اسپورٹس اور تعلیمی مقابلہ جات میں شرکت کی. آل پاکستان ایجوکیشنل اولمپیڈ کی اختتامی تقریب ڈی پی ایس فیصل آباد میں ہوئی، جس میں پرنسپل ڈی پی ایس محمد شاہد اور پرنسپل ڈی ایم ایس ایئر کموڈر ریٹائرڈ عامر سرور نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر تمام کیمپس کے ہیڈز بھی موجود تھے. تقریب میں پرنسپل ڈی پی ایس محمد شاہد اور پرنسپل ڈی ایم ایس عامر سرور نے پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم کی. اوور آل ٹرافی ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج نے اپنے نام کی. اختتام پر بلوچستان سے آئے طلباء نے روایتی رقص بھی پیش کیے.